Just a minute. Okay, students, Palak Mittal, please be on the line. Palak Mittal. Students, am I audible to you? Good evening, sir. Yeah, good evening. Students, am I audible? Yes. Palak Mittal, please be on the line. Palak. चलिए, Chahana Malik, please be on the line. Chahana Malik. Yes, sir. Chahana, we have started already the circular motion topic, in which first of all we have studied few terms like what is angular displacement, what is angular velocity, and how linear and angular velocity are related with each other. That is V equal to omega r. Yes, good evening. That is V equal to omega r. उसके बाद I started few questions V equal to omega r की practice पर. ये सारे question class में कराए थे in the very first class. Then I started the types of circular motion. Circular motion के बच्चे there are two types. One is uniform circular motion and the second one is non-uniform. What is the difference between the two? Yes, Chahana Malik. Uniform में क्या होता है? So the magnitude of velocity does not change. Magnitude of velocity does not change, but direction continuously changes. Yes. So to change the direction of velocity, you need an acceleration. Fine. And Yes. that acceleration is called as, क्या बोलते हैं उसको? Centripetal acceleration. Absolutely. You agree with me? Yes. And that centripetal acceleration is always directed towards what? किधर की तरफ होता है centripetal acceleration? Center. It is always directed towards center. और उसका मैंने derivation भी कराया था क्लास में ये रहा. And we got कि centripetal acceleration जो towards center लगेगा, that is always equal to v square by r, or you can say omega square r. Any doubt in this point? No, sir. And acceleration is always given due to some force. तो इसका मतलब है centripetal force लगेगा towards center, जिसको हम कर सकते हैं mass into centripetal acceleration. That's why नीचे आपको cloud में दिख रहा है mv square by r. तो जब भी आपका कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए. That gives you required centripetal force, which is mv square by r. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Clear. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा. पहले मैं आपसे सेंट्रिपिटल फोर्स पर एक क्वेश्चन करा के देखूंगा, फिर आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन. पहले आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर भेजेंगे एवरीवन. एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए. दिस पॉइंट इज फिक्स्ड स्टूडेंट. दिस एंड इज फिक्स्ड और आपको 3 पार्टिकल्स दिखा रखे हैं. ऑल आर हैविंग द सेम मासेस और आपने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ में घुमा दिया. यहाँ पर यू हैव बीन आस्क्ड कि जो 3 स्ट्रिंग्स दिख रही हैं आपको, इनमें टेंशन है T1, T2, T3. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज टेंशंस? Palak Mittal, is my question clear to you? Palak Mittal? I think she is. Taranjot, can you hear me? Taranjot. Yes, sir. Taranjot, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार. Yes, Pravesh Narang. Can you give me the answer of this question, Pravesh? Yes. So just a second, sir, I am solving it. ये तो हमें समझ में आ गया ना प्रवेश. जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, which you call as centripetal force. प्रवेश नारायण. Palak, now am I audible to you? Yes, sir. पलक, ये जो 3 स्ट्रिंग दिख रही हैं और आपका पार्टिकल का सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है. सो कैन यू प्लीज टेल मी कि T1, T2, T3 के रेशियोज क्या होंगे इन द गिवन क्वेश्चन?
So Yes, answer is a 3:5:6. but that is not the option. No, sir. Second option. Second option? No, second is not correct. Yes, Kifaya, you are correct. I know. चलिए मैं एक बार ना इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा. नो भव्यांश. चाहना मलिक, यू आर करेक्ट. चलिए मैं एक बार डिस्कस करूंगा. पलक मित्तल, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन प्लीज. पलक. Yes, sir. पलक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यार सबसे लास्ट वाले पार्टिकल सी से. आप मुझे ये बताइए, सी पर टेंशन की डायरेक्शन T3 अंदर की तरफ आएगी. यू एग्री विद मी? Yes. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. तो ये बताइए ये किस रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है? इज इट नॉट 3L? Yes, sir. मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सी. सो कैन आई से कि जो T3 है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका. इज T3 नॉट प्रोवाइडिंग m ओमेगा स्क्वायर r? ओमेगा सबके लिए सेम होता है व्हेन द पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग. तो r कितना लोगी? विल यू नॉट टेक 3L? 3L. Yes. Now come to the second particle B. I mean, बच्चे उस पर T2 tension is acting towards center. You agree with me? Yes, sir. But T3 is acting away from the center. तो जल्दी से बताइए सेंटर के towards जो net force होगा, will it not be T2 minus T3, which will be equal to m omega square into. आप second particle के लिए radius of circle 2L. तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं T3 को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, कहना इससे पलक T2 जो मेरे पास आ जाएगा राइट साइड में ले जाके, इट विल बिकम 5m omega square L. 3 plus 2 is equal to 5. Similarly, Palak, I can write down the equation for particle A. T1 is acting towards center, T2 is away from center. तो उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? T1 minus T2 is equal to m omega square, और इसका रेडियस तो L कंसीडर करोगे. T2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, T1 कितना आ जाएगा? Will it not be 6m omega square L? Palak, if I substitute all the values T1, T2, T3, I mean, so I can clearly write down कि जो मेरा रेशियो होगा that will be the option A. Yes. Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Now it's perfect. Yash Ahuja. Any issue now? Yash Ahuja. Yes, sir. तो यश एक बार बताइए, एक बार रिपीट करूं मैं इस क्वेश्चन को और इसे क्लियर कीजिए. यश आहूजा. ओके फाइन. स्टूडेंट, एनी फर्दर डाउट इन दिस क्वेश्चन? अदरवाइज मैं फिर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा के देखूंगा. चलिए, चाहना मलिक, फाइन, क्लियर दिस क्वेश्चन? चाहना? Yes, sir. It's clear. चलिए, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सेंट्रीपिटल फोर्स की आज मुझे प्रैक्टिस करानी है. फॉर एग्जाम्पल, another question is, Chahana, please be on the line. Yes, sir. For example, we are given a car is moving on straight track. This is the straight track and this is the point A. And all of a sudden, ये track कुछ curved हो जाता है like this. Then it will be curved this way.
तो कार कभी ना कभी आपकी पॉइंट बी भी क्रॉस करेगी लाइक दिस, Yes, sir. and this car is moving with constant speed, and after some time car will be at point C also. Fine. तो Yes. आपको ये बताना है if the car is moving at constant speed, if the car is moving with constant speed and NA, NB and NC are the normal forces acting on car at A, B and C respectively, then आपको बताना है which option is correct. Let us say I'm giving you few options. NA is equal to NB is equal to NC. Normal will be same at all the 3 points. Second option is NB greater than NA greater than NC. C option is NB less than NA less than NC. So your voice is And lagging. last option is none of these. Student, is my voice lagging? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Still lagging? नहीं सर, अब ठीक हो गई. Send me the answer on chat box. Palak Mittal, is the question clear to you? Yes, sir. तो जल्दी से बताइए which option is the right answer. Yes, Kifaya, you are correct. Yash Ahuja, some error is there in your answer. Yash Ahuja. Chahana, there is some error. Hanji, what about you, Priyal Dabria? Priyal, am I audible to you, Priyal? Yes, sir. Any answer? One second. Hanji, Taranjot, any answer? Taranjot? Yes, sir. I'm Yes. trying. चलिए तरनजोत, एक बार मैं डिस्कस करूंगा. आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू. तरनजोत, Yes, sir. तरनजोत ये बताइए, जो ट्रैक ए है, इज इट नॉट द स्ट्रेट ट्रैक? तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, लेट अस से द कार इज हैविंग वेट mg एंड ट्रैक इज स्ट्रेट, तो आपका नॉर्मल लगेगा वर्टिकली अपवर्ड. लेट na, will you not say कि na will be balancing gravitational force? You agree with me or not, Taranjot? Yes. Yes, sir. But Taranjot, when the car is coming at the point B, तो आपका जो ट्रैक B है, is it not the curved track? तो क्या आपको curved path दिख रहा है कुछ इस टाइप से? You agree with me or not? Yes, sir. And whenever you are moving along a curved path or any circular kind of track, we need a force towards the center. और center है ऊपर कहीं यहाँ पर, तो क्या हमें एक सेंटर की तरफ एक फोर्स नहीं चाहिए, which we call as centripetal force? तरनजोत, Yes, जब sir. भी कोई कार या कोई भी पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा. सो कैन आई राइट डाउन, व्हेन द कार इज एट पोजीशन बी, नॉर्मल लगेगा वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स सेंटर एंड mg इज डाउनवर्ड. तो हाउ मच इज नेट फोर्स टुवर्ड्स ये सेंटर को कुछ ओ नाम दे देता हूं. Can I write down NB minus mg is the net force towards center, which will give you mv square by r. तो यहां से आपका NB कितना आ जाएगा तरनजोत?
will it not be mg plus mv square upon r? Is it cleared Yes, or sir. not? Yes, अच्छा, अब जल्दी से बताइए, जब कार सी पॉइंट पर पहुंचेगी तो आपका सेंटर ऑफ सर्कल कहां पर लोकेटेड होगा? विल इट बी अपवर्ड और डाउनवर्ड? सेंटर कहां होगा? सर नीचे। नीचे होगा। तो सेंटर कहीं यहां पर ले लेता हूं मैं, एंड आई कैन राइट डाउन कि जो फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है अब उल्टा हो जाएगा, NC will be acting away from the center. So how much is the net force towards the center? You can see, is it not mg minus nc? That will be giving you mv square by r. तो जल्दी से बताइए यहां से nc कितना आ जाएगा? How much will it be? Will it not be, yes Taranjot, mg minus mv square by r? Yes, sir. So you tell me, out of the three normals, which is the smallest one? Is it not nc? क्योंकि Yes, आप sir. mg में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, then it will be mg, और सबसे बड़ा होगा यहाँ पर सेकंड केस, I mean nb. So Yes, can I sir. not say B option is the right answer? Yes, sir. Yes, Palak Mittal, is this question clear to you, Palak? Yes, sir. Any doubt, anybody else? Yes, आप बाकी लोग बताइए. अभिवंदन टंडन, how did I solve the question? Any doubt, अभिवंदन? No, sir. अभिवंदन, कुल मिला के क्वेश्चन से ये लर्न कर रहे हैं कि वी नीड ए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट फोर्स गिव यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, एनी डाउट फर्दर? किसी और को कोई डाउट हो यहाँ पर? यस, चाहना मलिक, एनी डाउट हियर? No, sir. चलिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन मैंने सेंट्रीपिटल के कराए और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था चाहना करने के लिए. डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ जी, एक बार बताइए स्टूडेंट्स. अनिरुद्ध वत्स, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अनिरुद्ध. सौरभ मिश्रा, एम आई ऑडिबल टू यू? सौरभ. Yes, sir. सौरभ, इस क्वेश्चन को बेटा अभी ट्राई करेंगे जल्दी से, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा अब आपका. इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ट्राई राइट नाउ. पलक, आपने ट्राई किया क्वेश्चन? No, sir. नहीं, अभी करेंगे. क्या बात है, आज लोगों का नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है, बार बार कोई आ रहा है जा रहा है. ऑल्दो आई एम आल्सो टेकिंग क्लास ऑन मोबाइल डेटा. यस सर, आपका वो ऊपर दिख रहा है सर, हॉटस्पॉट. हाँ, हॉटस्पॉट से ले रहा हूँ कि मैं आई एम सिटिंग एट द सेंटर एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सिंस द मॉर्निंग. यस स्टूडेंट, एनी आंसर? चलो एक काम करते हैं, पलक बी ऑन द लाइन. यस पलक, Yes, sir. एक वीडियो दिखाऊंगा पहले मैं आप लोगों को, फिर आप इस क्वेश्चन को शायद ट्राई करो तो हो जाए. ठीक है स्टूडेंट, एक वीडियो दिखाएंगे. Of roads 01. Objective: to understand the role of banking की बातचीत friction नहीं हो at रही. circular turnings and banked roads. Maximum allowed speed while taking each curvilinear section be approximated to be an arc of a circle with a certain radius. A centripetal force must act towards the center of the arc to enable the vehicle to move along it. This centripetal force, by the static moving on, balances the weight of towards the center. While making a turn, if the velocity of the car is v and radius of the arc is r, the centripetal force acting on it would be equal to mv square by r. For the car to make a safe turn, the required centripetal force should be within the limit of static. The car should be such that it satisfies the relation mv square by r is less than or equal to mu mg. In other words,
V should be less than or equal to the limiting value root over mu So student, rg. this is the answer that we have got. और अब मैं आपको इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से you have to understand the things. चलिए पहले बताइए, वीडियो देख के कुछ समझ में आया कि नहीं? ये स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? चलिए, Yes, sir. हर्ष, आई विल डिस्कस विद यू. हर्ष, एक बार आप लाइन पर आइए. हर्ष, हर्ष, मैं उस जो अभी आपको वीडियो दिखाया है उसी वीडियो की बात करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन रीड कर लिया एक बार पहले? हर्ष, ये बताइए. तो स्टूडेंट, आवर क्वेश्चन इज, देयर इज अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ द रेडियस r and the coefficient of static friction between the tire and road is mu s. Find out with how much maximum speed car can take the turn safely. चलिए, पलक मित्तल आप आ जाइए एक बार प्लीज. पलक मित्तल. Yes, sir. पलक, फॉर एग्जांपल कार को एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लेना है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और कार पीछे से आ रही है सर्कुलर ट्रैक पर एंड इट इज गोइंग लाइक दिस. तो पहले आप ये बताइए पलक कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एनी ट्रॉली और कार इज लाइक दिस, और जो ग्राउंड सरफेस है वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टली लाइक दिस. ये मैं ग्राउंड सरफेस दिखा रहा हूँ साइड से, ठीक है? Yes. पलक, ये बताइए, टायर्स के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा, विल इट नॉट बी वर्टिकली अपवर्ड, जैसा मैंने अभी वीडियो में दिखाया था? Yes. यू एग्री विद मी? एंड द वेट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. अब आप मुझे ये बताइए, व्हेन द कार हैज टू टेक द टर्न, तो क्या आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो टुवर्ड सेंटर लगना चाहिए? यू एग्री विद मी? क्या वो नॉर्मल फुलफिल कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नॉर्मल इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. क्या उसका कोई कंपोनेंट है व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर पैरेलल टू द रोड? इज इट पॉसिबल? नो. No, sir. क्या वो mg से फुलफिल हो सकता है? mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपको फोर्स चाहिए टुवर्ड्स सेंटर. तो बच्चे, होता क्या है, व्हेन द ड्राइवर इज टेकिंग टर्न, तो कार की जो स्लिप होने की टेंडेंसी है वो बाहर की तरफ होती है. यू एग्री विद मी? Yes. कार के तो फ्रिक्शन जो है टायर्स पर, दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच विल गिव यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द कार हैज टू टेक द टर्न. यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, that will be acting towards the center of the circle. This small f is nothing but जो टायर पर मैं अंदर की तरफ लगाऊंगा, this is frictional force. So I am writing down here when the car has to take turn with uniform speed, friction will be acting. सौरभ, आपको क्लियर हो रहा है ये? सौरभ मिश्रा, Yes, sir. friction will be acting towards the center of circle, which will give us required centripetal force. देखिए, सेंट्रीपिटल खुद से कोई फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल को कोई प्रोवाइड करता है. इट विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. चलिए, मेरी बातचीत चलेगी. चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन. Yes, sir. तो चाहना, ये बताइए, ये फ्रिक्शन जो है, कैन आई से कि दिस फ्रिक्शन इज गिविंग यू mv स्क्वायर बाय r, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. नाउ द सेकंड थिंग इज दिस फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक? मेरा ये क्वेश्चन पूरी क्लास से है. इज दिस फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक? प्रियल डाबरिया, प्लीज बी ऑन द लाइन. प्रियल डाबरिया, जब कार टर्न करेगी तो फ्रिक्शन जो लगेगा टायर्स पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसे मैंने दिखाया है, इज इट स्टैटिक और काइनेटिक? प्रियल डाबरिया, you can send me the answer even on chat box also. Tarush Bhutani is saying kinetic. Student, मैं कहूंगा ये static होगा. Please. Palak Mittal, can you please be on the line? You are also saying Yes, kinetic. Palak, ये होगा static friction. अब कहोगे कार चल रही है तो static कैसे हो जाएगा?
यू एग्री विद मी? ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे? Yes, sir. नहीं, देखो एक चीज समझना, जब कार का टायर टर्न कर रहा होता है तो ये बेसिकली रोल कर रहा है एक तरीके से ग्राउंड सरफेस पर। जब रोल करते हैं ना तो जो पॉइंट कांटेक्ट में आता है पलक मित्तल, इट डज नॉट स्लाइड डाउन। जब ये रोल करते टाइम फिसलता नहीं है ग्राउंड के ऊपर, इट इज नॉट स्लाइडिंग। अगर स्लाइड कर रहा होता ग्राउंड के पैरेलल तब आप इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते। और आगे एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, जहां पे स्टडी करोगे ये पॉइंट मोमेंटरली रेस्ट में होता है पलक मित्तल। टायर जब रोल कर रही होती है तो उसका पॉइंट स्लिपरी नहीं है ग्राउंड के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अगर कार का टायर स्लिप हो रहा होता देन आई वुड हैव टेकन काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन दैट टायर। यू एग्री विद मी? पर सर हम यहाँ वही मैं तो फोर्स लगा रहे हैं जो स्लिपिंग से बचा रहा है उसे। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ बचाए स्लिपिंग से, तभी तो आपका टायर मोमेंटरली जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा वो रेस्ट में नहीं होगा। स्लिपिंग से ही तो बचाना है एक तरीके से। Yes, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes, sir. तो दिस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर। मैं व्हाइट कलर से अलग से लिख रहा हूँ स्टैटिक। तो यही डायग्राम चल रहा है एनीवे मेरा आगे, तो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, हेडिंग हटा देता हूँ। यू एग्री विद मी स्टूडेंट्स? एक बार बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पलक मित्तल। Yes, sir. हाँ जी, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है मैं उसको आगे लिखूंगा। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन था दैट वाज गिविंग यू mv स्क्वायर अपॉन r। फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर। अब आप ये बताइए पलक, राइट साइड में आप स्पीड बढ़ाती जा रही हो, फॉर एग्जांपल हायर स्पीड से आना है, तो लेफ्ट साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो इंक्रीज होगा पलक मित्तल। Yes, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको वी कॉल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। limiting. तो इफ आई टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और वो कितनी ले सकता हूँ? म्यूएस इनटू mg, क्योंकि नॉर्मल यहाँ mg के इक्वल था। यू एग्री विद मी? यू कैन सी Yes, इन द फिगर एज वेल। तो बेटा ये राइट साइड में क्या हो जाएगा? विल इट नॉट बी m इनटू, राइट साइड में आप सेंट्रीपिटल भी मैक्सिमम कर दो, mv मैक्स स्क्वायर अपॉन r, मास से मास will get cancelled out, so finally you are getting the maximum speed with which you can safely drive the car is nothing but equal to under root of mu sgr. This is a very important expression everyone should remember. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्या मैंने आपको बताया, और वो वीडियो एक बार प्लीज जरूर देखेंगे through the recording as well. It is the static friction which will be acting on the tire towards the center of the circle, जो आपकी centripetal requirement fulfill करेगा। तो static friction is giving you mv square by r. Bhavya, is this point clear or not? Bhavya, Yes, sir, it's clear. Bhavya, this equation I am asking you कि friction आपको required centripetal force दे रहा है, is this point clear? Yes, sir. और वो static nature का, अदरवाइज कार skid कर जाती। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को लेफ्ट साइड में मैक्सिमाइज कर दिया विच इज म्यू एस एन जी, तो राइट साइड में आपका सेंट्रीपिटल भी मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज m into v max square upon r. So finally this is the speed with which we can drive the car safely. मैक्सिमम स्पीड है ये। अगर पलक में इससे ज्यादा स्पीड कर दूं then what will happen? पलक मित्तल, सर कार स्लिप कर जाएगी। कहाँ स्लिप करेगी? कैन आई से सेंटर से अवेयर, आई मीन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से, Yes, क्योंकि फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट अंदर ही तो लग रहा था पलक मित्तल। तो इस पॉइंट को भी मैं मेंशन कर दूंगा। If speed of car becomes greater than Vmax, then car will slip, I will say radially outward away from the center. Shahana Malik, this point is cleared or not? Sir, it's clear. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो एक बार। No doubt, sir. चलिए तो एक क्वेश्चन हो जाए स्टूडेंट इसके ऊपर। Any doubt here? Yes, students. Any doubt? Manita, is it cleared or not? Manita. Yes, sir. मान्यता लेट ज्वाइन किया है, मैंने ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन कराया और इससे पहले 2 क्वेश्चन और करा चुका हूँ। तो बेसिकली आज हम सीख रहे हैं कि जो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगता है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन की फ्रिक्शन है जो आपको कार के टायर को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मान्यता, Yes, sir. and that friction is 100% static in nature as I have already explained.
हर्ष कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं हर्ष, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हर्ष नो डाउट सर। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन करके दिखाइए अब आप इसके ऊपर। A car having mass 150 kg has to take turn of radius 10 meters and its speed आपको दे रखी है, speed is 36 किलोमीटर पर आवर। Find out the horizontal force required to take the turn possible and also calculate minimum coefficient of friction to be present so that driver can take the turn safely. Driver can take the turn safely. हाँ जी, सौरभ मिश्रा, इज माय क्वेश्चन क्लियर टू यू? सौरभ मिश्रा, Yes, sir. तो सौरभ जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। Yes. पलश छाबड़ा, इजी क्वेश्चन है पलश, ये तो हो जाएगा बहुत जल्दी। सर मैं समझा ही नहीं क्या मांगा है। अच्छा समझा नहीं, तूने लेट मैं ज्वाइन तो किया है। यस सर। मैंने अभी ये बताया है, जब भी हम एक सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, ये तो अटेंड कर ही यस रखा है सर। आपने। यस सर। तो और जब हम कार मूव करते हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? दैट सर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यस और सर। वो फ्रिक्शन नेचर वाइज होता है स्टैटिक नेचर का, स्टैटिक। क्योंकि अदरवाइज कार का टायर स्लिप हो जाएगा अगर मैं काइनेटिक ले लूंगा। यस ठीक है, सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन mv²/r देता है, और Yes, वो sir. स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमाइज कर दें तो म्यू mg, तो म्यू mg हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mv²/r, तो वहां से मैक्सिमम स्पीड आ जाती है। ये अभी समझाया है मैंने। ओके सर, और इसमें ठीक है सर, हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट जल्दी कीजिए, आप सबसे हो सकता है ये, अदरवाइज आई कैन सॉल्व। हाँ जी, चाना मलिक इज करेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, जल्दी कीजिए। तरनजोत, एनी आंसर? तरनजोत Yes, sir, I'm doing. चलिए, बाकी लोग भेजिए मुझे जल्दी। प्रियल टाबरिया, यस प्रियल। Yes, sir. Can you hear me? प्रियल, यस यस आई कैन हियर यू। प्रियल, जब आपकी कार सर्कुलर टर्न करेगी हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर लाइक दिस, तो Sir. आपके कार के टायर पर अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स फुलफिल कर दे, Yes, sir. और वो फ्रिक्शन अच्छा। करता है, ये हमें वैसे भी पता है। तो Yes, sir. कैन आई नॉट राइट डाउन कि फ्रिक्शन है जो आपको mv²/r देगा अंदर की तरफ? यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड फोर्स, वो एक्चुअल में mv²/r ही पूछा है। तो कैन आई सब्स्टिट्यूट द डेटा? तो डेटा पुट करना है, मास इज 150 kg, हाउ मच इज द स्पीड?
36 किलोमीटर पर आवर है, but I have to convert into meter per second. 36 into 5 by 18, that will be 10. तो mv square हो जाएगा 10 into 10 divided by radius, which is also 10. So we are getting required force होगा 1500 Newton. कुछ लोगों ने शायद 36 को चेंज नहीं किया, that's why they have shared wrong answer. Sharwani, now is it cleared or not, Sharwani? Yes, sir, I forgot to change 36. Yes, 36 kilometer per hour. Please convert into meter per second. Sharwani, now tell me, ये force जो अंदर की तरफ लगा है, is it not the frictional force, Sharwani? Yes, sir. तो अब आप इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे? Will you not substitute कि 1500 is equal to what? Sir, Maximum. US into mg. Yes, mu s into mg, and mg is also 1500 because 150 kg is the mass, m into g. तो mu s की जो वैल्यू आ जाएगी, that will be equal to एक तरह से 1. You agree with me, Sharwani? Yes, sir. Student, any doubt in this question? Taranjot, कोई doubt हो तो पूछ सकते हो आप. Yes. No doubt. तो एक पॉइंट आप याद रखेंगे, whenever car has to take the turn on a horizontal track, it is the friction जो ज्यादा से ज्यादा mu s mg हो सकता है. It will give you required centripetal force. Ashmit Dudeja, is it cleared? Ashmit Dudeja. Ashmit. चलिए अश्मित वैसे क्लियर है, एक बार हम चैट पर भेज दें. ओके फाइन स्टूडेंट्स. तो देखिए अभी तक हम, पलक मित्तल आप लाइन पर आइए, फिर से इससे आगे की थ्योरी आपसे डिस्कस करूंगा. पलक, अभी तक हम सर्कुलर ट्रैक पर जब टर्न लेना था तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शन. यू एग्री विद मी? Yes, sir. अब फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, यानी कि आपकी मैक्सिमम स्पीड आई थी जो अभी पीछे रिजल्ट निकाला है, रूट ओवर म्यू एस जी आर. अगर आप इससे ज्यादा स्पीड कर देती हैं देन कार स्किड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. यू एग्री विद मी? अभी लिखा भी है मैंने. Yes, sir. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि जिससे हम किसी हायर स्पीड से कार को ड्राइव कर सके? कुछ है हमारे पास मेथड सो दैट वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो मैक्सिमम स्पीड आई है हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर विद व्हिच वी कैन ड्राइव द कार सेफली. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर अपनी स्पीड रेंज को इंक्रीज करने के लिए? ये अब पलश एक मिनट वेट कर. यस शर्वानी, कैन वी डू एनीथिंग शर्वानी so that we can drive the car with some higher speed? Sharwani, कुछ सुना हो, कुछ करा हो? Yes, हाँ बताइए. So maybe increasing the radius. No, we provide some inclination to the road. चलिए इसी बात पर पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, बैंकिंग ऑफ ट्रैक क्या होता है. पहले आप ये वीडियो देखिए कंटिन्यूटी में. With the velocity जैसे आपकी कार म्यू जी आर से ग्रेटर होती है तो कार स्किड हो जाती है बाहर. Banking of roads. We cannot always rely on friction as it depends on external factors such as rain or frost, which significantly decreases the value of static friction. To avoid skidding of vehicles at turns, the outer edge of the road is raised up, which is called banking. Suppose surface of the road at a turn makes an angle theta with the horizontal surface. This results in the horizontal component of normal force n sine theta acting towards center, providing the necessary centripetal force at the turn. Friction is not taken into consideration here. Therefore, n sine theta is equal to mv square by r. The vertical component of the normal force balances the weight of the vehicle. So, n cos theta is equal to mg. From these equations, we arrive at the equation tan theta equals to v square by rg. Thus, v is equal to root over rg tan theta. चलिए स्टूडेंट, इसको मैं अब आगे एक्सप्लेन करूंगा किया क्या था. पलश छावड़ा प्लीज बी ऑन द लाइन. पलश छावड़ा. यस सर. पलश, अभी तक जितना हमने पढ़ा है कि कार का जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर सर्कुलर मोशन चल रहा था, वी वर रिलाइंग ओनली ऑन फ्रिक्शन. यू एग्री विद मी? यस सर. अब इस फ्रिक्शन को ओवरकम
करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक। चलिए स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लेना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड या बैंकिंग ऑफ ट्रैक। तो बैंकिंग में आप इंक्लाइन कर देते हैं एक साइड से रोड को, ऐसा आपने हिल स्टेशन में देखा भी होगा, पलस छावड़ा करते हैं यस कि सर, नहीं? वो ऊपर ऊपर से कर लेते थोड़ा यस। सा। तो अभी तक हमारा रोड ऐसे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल था, अब इस साइड से मैं रोड को ऐसे उठा दूंगा, इस वाली ट्रैक को साइड से उठा देते हैं, तो एक नया डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो अब जो रोड होगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है, पलस छावड़ा। यस सर। आपने थीटा का इंक्लिनेशन लेटर से रोड को दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, थीटा। एंड सम ट्रॉली और कार इज एट दिस पोजीशन। तो पलश ये कार ऐसे पीछे से आ रही थी बच्चे, और इसको सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे निकलना है। तो कहना इसे कि समवेयर सेंटर मेरा यहाँ होगा, मैंने अभी डायग्राम में बहुत अच्छे से वीडियो में सब चीजें दिखा दी हैं। यस सर। दिस इज आवर सेंटर एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, ठीक है। यस सर। तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि कार के ऊपर बच्चे एक तो mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एंड रोड। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द रोड लाइक दिस। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ नॉर्मल का एक कंपोनेंट डेवलप होगा जो आपकी सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, तो सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम। दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो आई कैन से दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि बीच वाला दिख रहा है मुझे 90 माइनस थीटा। कैन आई रिजॉल्व नॉर्मल, दिस विल बी n cos थीटा, एंड एन साइन थीटा। टुवर्ड सेंटर जो एक कंपोनेंट डेवलप होगा दैट वुड बी n sin theta. So I can say कि it is n sin theta which can give me required centripetal force. That's why it will be equal to mv square by r. And vertically upward force जो होगा n cos theta, that will be balanced by mg. So we are having two equations, and इन दोनों को मैं divide कर दूं तो I can find it out, n will get cancelled out, tan theta equal to v square upon gr. This theta is called as angle of banking. तो यहां आप सिर्फ फ्रिक्शन पर रिलाई नहीं करेंगे, नॉर्मल का एक कंपोनेंट होगा जो आपको सिंपली अपने आप सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। तो यहां आप करते क्या है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा आ जाइए आप यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. चाहना यहाँ पर ये फॉर्मूला जो मेरे पास आया है, इसमें थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। Yes, sir. चाहना यहाँ पर मुझे g तो ऑलरेडी पता है, लाइक g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रोड का रेडियस मैं वहां पर जाके फाइंड आउट कर लेता हूँ कि कितना रेडियस है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखूंगा। इन द अबव एक्सप्रेशन, in the above expression we assume certain value for velocity. वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, लाइक 20 मीटर पर सेकेंड से चलनी है कोई कार, तो 20 v पुट कर देंगे, सर्टेन वैल्यू फॉर वेलोसिटी, एंड आल्सो g एज वेल एज r, ये आपको पहले से पता ही होते हैं। तो कैन वी नॉट फाइंड आउट प्लस वैल्यू ऑफ थीटा? यस सर, वो tan थी। एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा corresponding to which road is inclined. जैसे फॉर एग्जांपल पलस छाबड़ा, कोई भी कार 20 की स्पीड से मुझे ड्राइव करनी है, टर्न करना है, तो मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूंगा 20 इंटू 20, जी की वैल्यू मुझे पता होती है 10, और जो भी रोड का रेडियस होगा, लाइक कुछ भी मान लिया अपनी मर्जी से 50, तो इसको सॉल्व करके आई कैन फाइंड आउट कि मेरा थीटा कितना चाहिए। तो उस थीटा के अकॉर्डिंगली आप रोड का फिर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक। पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं पलक छाबड़ा? सर यस सर। हाँ जी, पलक मित्तल, इस कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो। पलक मित्तल, परनीत कौर, पार्थ बत्रा, एनी डाउट हियर? परनीत कौर, तो बैंकिंग जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वी शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन फ्रिक्शन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
यहाँ नॉर्मल का एक कंपोनेंट डेवलप किया जिसने अपने आप सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। मैं सीक्वेंस में चलूंगा, पहले बताइए यहाँ तक स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट हो? भव्या, गौर, भव्या, एवरीथिंग इज क्लियर? भव्या, Yes, sir. तो भव्या मुझे 4-5 क्वेश्चंस अभी करा के देखने हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो फर्स्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन हमें अभी करने हैं, बैंकिंग के ऊपर ही बेस्ड है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 अभी किया है इसी टाइप का, आई मीन चाहो तो चलो 1 भी कर दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वेश्चन करने हैं अभी। Question number 1, 2, 3 as well as 4. जिज्ञासा दिवाकर, yes जिज्ञासा। Jigyasa, you are getting it or not? Yes, Jigyasa. Yes, sir. What about you, Nehal Agrawal? Yes, Nehal. Yes, sir. I'm sending the answer for the first question. First question is very easy, Nehal. Yes, sir. I'm sending. स्टूडेंट फर्स्ट तो अभी किया है, उसी टाइप का है कि रिक्वायर्ड आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल फोर्स सो दैट टर्न इज पॉसिबल। इसका मतलब है सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट mv स्क्वायर बाय r। दैट इज वेरी सिंपल। मास इज गिवन एज 150 एंड अभी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो यू विल टेक 10 into 10 अपॉन रेडियस इज गिवन एज आई थिंक 30 मीटर। दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी 500 न्यूटन। लॉलीपॉप क्वेश्चन। Send me the answer of second question. Yes, Chahana Malik, you are absolutely correct for the second question as well. Saurav Mishra, you are also correct. Angle of banking is simply tan theta equal to, क्या फॉर्मूला निकाला था शर्वानी? जल्दी बताइए पूरी क्लास को शर्वानी। V square upon GR. V square upon GR. Just substitute the values, you will get the answer. उसके बाद जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन, tan theta is equal to V square. स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, so that's why 10 into 10 upon G की वैल्यू into R. R is 30 meters. That's why our answer will be tan theta equal to 1/3 or theta is tan inverse 1/3, whatever you want to say. Taranjot, second question is also clear. Taranjot, Yes, sir. solve third question then. Yes, Devang Garg, you are correct. Palash Chavda is right. Then solve question number 4. Again, question number 3, we have to apply the same formula, tan theta equal to V. अब velocity consider करेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर means 5 मीटर पर सेकेंड। V square upon GR. G की value 10, radius is given as 10. So that's why tan theta equal to, that will be 1/4. Yes, now send me the answer of question number 4. अब बैंकिंग हटा दिया, फिर से हॉरिजॉन्टल कर दिया। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट स्कूटर कैन टेक द टर्न सेफली एट 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड? And of the previous question means radius should be 10 meters. Yes, Chahana Malik, you are correct.
इसमें आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे चाहना? Vmax is equal to under root mu s rg. yes, student directly substitute this formula. तो Vmax तो already given है 18 किलोमीटर पर आवर मींस 5 मीटर पर सेकेंड. mu s into g की वैल्यू 10 और प्रीवियस पार्ट से रेडियस उठा लेंगे 10. So that's why mu s कितना आ जाएगा? will it will be 1/4. Yes, Priyal Dabria. Fourth question is also correct. Fourth is clear. Yes, sir. Now send me the answer of question number 5. Manita, are we comfortable in all the 4 questions? Manita. Yes, sir. Bhavya, any doubt in any of the 4 questions? Bhavya. Ansh Gupta. Yes, No, Ansh. sir, no doubt. तो अंश 5th पार्ट का आंसर भेजें जल्दी से. पलश छाबड़ा, एनी आंसर ऑफ 5th पार्ट? पलश सर वही भेज रहा हूँ, रूट्स में आ रहा है बहुत ज्यादा. पलश हिंट तो दे दें कैसे करना है. सर Vmax equals to root of tan theta gr. ना हाँ, मतलब इसी से कर दूंगा. फॉर्मूला निकाला है ना मैंने. देखो sir. स्टूडेंट समझ भी लेना. आपने पलश छाबड़ा इस क्वेश्चन में बैंकिंग के डेरिवेशन में कहीं फ्रिक्शन को यूज किया? नो सर. तो ये वो थीटा है जब आपको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती एक तरीके से. तो अगर आप रोड का इंक्लिनेशन tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय gr के थ्रू कर रहे हैं, देन फ्रिक्शन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. और यही शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड. तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? कैन आई राइट डाउन tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन gr? तो tan थीटा में थीटा इज इक्वल टू 30, tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू, आपसे आई थिंक v पूछा गया है, तो v स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू 10 एंड रेडियस इज गिवन एज 50. सो आर यू नॉट गेटिंग कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500 अपॉन √3. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैं ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ. दिस विल बी द आंसर. 17 और चलिए जो भी आएगा. पहले ये बताइए स्टूडेंट्स, जितना अभी तक किया है हर्ष, पहले हमें सर्कुलर मोशन ऑफ कार समझ में आया कि हमें बैंकिंग की नीड पड़ रही है so that we cannot rely only on the friction. Harsh, is this point cleared or not? Harsh, Yes, sir. is this point cleared कि मैंने बैंकिंग क्यों की थी? Yes, sir. पलक मित्तल, कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकती हो. पलक, एक बार बता दो आपने बैंकिंग क्यों की थी? बैंकिंग के लिए थी, पीछे मैं लिख रहा हूं. When the road was horizontal, we were relying on friction to provide required centripetal force. बट आफ्टर बैंकिंग, जब आप रोड को इंक्लाइन कर देते हैं, आफ्टर बैंकिंग ए कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल जो आपको दिख रहा है n sin थीटा कैन गिव अस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. हाँ जी, अब ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? एक बार बताइए. पलक मित्तल, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट कि मैंने क्या किया है यहाँ पर? चलिए अच्छा पलक, अब यहाँ मुझे जानना है, थोड़ा सा फिर से थ्योरी में आ जाऊंगा. ये बताइए, आपने जो मैंने थ्योरी लिखी है, जो नीचे नोट करके पॉइंट लिखा है, आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और रोड का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. यू एग्री विद मी? Yes. अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर.
फॉर एग्जाम्पल आपने रोड का एक कंस्ट्रक्शन किया, आपने टेन थीटा में वैल्यू पुट करी वी स्क्वायर बाई जी आर, आपने v की वैल्यू लेट कुछ वैल्यू एज्यूम कर ली थी 20 मीटर पर सेकेंड, और आपका थीटा सॉल्व करके आया लेट 30 डिग्री, तो आपने 30 पर इंक्लाइन कर दिया। एग्री करती हो? Yes. और कार की स्पीड कितनी पुट कर रखी है अभी आपने फॉर्मूले के अंदर? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कार को 20 से ही चलना होगा। तो इफ ए ड्राइवर इज कमिंग एट द स्पीड आइडर ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20, तो क्या एक्सीडेंट होगा या रह सकते? क्या होगा यहाँ पर? यू टेल मी प्लीज। सर जो कार है सर उसकी हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास के लिए है। समय जो वैल्यू एज, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ इन सब लोगों के लिए। whatever स्पीड वी आर एज्यूमिंग इन दिस फॉर्मूला, कोई भी वी हमने एज्यूम करा उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब एक कार आती है जिसकी स्पीड वी से कुछ डिफरेंट है, तो रोड को बार बार कंस्ट्रक्ट थोड़ी करते रहेंगे पलश छाबड़ा। एग्री करते हैं मेरी बात से पलश? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप दोबारा से रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे अगर कोई कार डिफरेंट स्पीड से आती है तो? पलश छाबड़ा, एम आई ऑडिबल? आई थिंक उसका भी कुछ इशू है, आज बहुत नेटवर्क की बहुत इशू हो रहा है। हाँ जी, पलक मित्तल आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या होगा अब यहाँ पर? चाहना मलिक, यू वांट टू से एनीथिंग? चाहना मलिक, इफ ए कार इज कमिंग एट ए स्पीड अदर देन जो भी हमने वैल्यू एज्यूम की होगी, देन व्हाट विल हैपन? Sir, it can skid. इट कैन स्किड। तो इसका Sir, मतलब मैं है कि बताऊं? सर मैं हाँ जी, बताऊं, बताइए। नेटवर्क दिक्कत पलश, है सर। हाँ जी पलश छाबड़ा बताइए आप। पलश। सर फ्रिक्शन प्ले में आ जाएगा। यस स्टूडेंट, अभी तक मैं जब बैंकिंग का डेरिवेशन कर रहा था मैंने कहीं फ्रिक्शन नहीं लिया। तो कार का ड्राइवर अगर जो स्पीड आपने एज्यूम किया लाइक 20, इससे डिफरेंट स्पीड से अगर आप आओगे तो फ्रिक्शन विल प्ले इट्स रोल, और आपको एक मैक्सिमम स्पीड वो प्रोवाइड करेगा जिससे आप सेफली ड्राइव कर सकते हो, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ थ्योरी के अंदर ऐड करूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अब जो हो रहा है। पलक मित्तल स्कूल में लगता है करते नहीं, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। पलक, मुझे समझ नहीं आया। चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। थोड़ा थ्योरी लिखूंगा। ड्यूरिंग द बैंकिंग we assume certain optimum value for the velocity, certain optimum value for the velocity, but if a car is coming at a speed either greater than assumed value, either greater than assumed value, जो भी आपने जैसे 20 assume की थी, और less than assumed value, less भी हो सकती है, then static friction will play its role, और friction static ही होगा, नहीं तो skid कर जाएगी कार, kinetic ले लिया तो, then static friction will play its role and there will be certain maximum as well as minimum value with which driver will be able to take the turn safely. मान्यता, एक बार ये पूरा स्टेटमेंट देखें और बताएं, इज इट क्लियर और नॉट? मान्यता, Yes, sir. मान्यता देखो सीक्वेंस में चलना है। एक बार मैं ना पूरी क्लास को क्या आज कराया मैं उसको एक बार ब्रीफली समराइज कर रहा हूँ। पहले हम हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर चला रहे थे कार, तो वी वर रिलाइंग ओनली ऑन द फ्रिक्शन जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, एंड दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर।
वहां हमने ऑब्जर्व करा देयर वाज ए मैक्सिमम स्पीड। पलक एक बार आप लाइन पर आओगी पलक मित्तल, Yes, sir. एक मैक्सिमम स्पीड आई रूट म्यू जी आर। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने रोड का इंक्लिनेशन स्टार्ट किया। जब इंक्लाइंड किया तो पलक फ्रिक्शन की जगह एक नॉर्मल भी हो सकता है जो आपको सेंटीपिटल फोर्स से देगा। तो वहां हमने फाइंड आउट किया एक एंगल ऑफ बैंकिंग जिसका फॉर्मूला याद रखना है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर। पलक मित्तल ठीक है। अब वहां पर हमने कुछ v की वैल्यू एज्यूम करी, रोड का कंस्ट्रक्शन किया थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली। बट क्या अगर कोई कार किसी डिफरेंट स्पीड से आ रही है तो रोड का बार बार तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं। सो इफ एनी ड्राइवर इज टेकिंग द कार एट हायर स्पीड और लेसर स्पीड, नाउ फ्रिक्शन, क्योंकि बैंकिंग के डेरिवेशन में कहीं हमने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। जब भी कोई कार हायर या लेसर कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. सर बीच में आपकी आवाज कट गई। हाँ जी, एक बार बताइए पहले पूरा अच्छे से, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी स्टूडेंट्स। सर एक मिनट पहले आवाज कट गई थी। यार मोबाइल डेटा पर चल रही है ना क्लास। पहले चलिए आप मुझे ये बताओ, पहले आपको यहाँ तक सारा अच्छे से समझ में आया? एक बार बताइए। चलिए मैं इसके आगे क्या कहते हैं वो स्टार्ट करूंगा। अब मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड निकालना फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करके। थर्सडे की क्लास में फ्रिक्शन वाला पार्ट भी सारा कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे को, कमिंग सैटरडे जो है, आई विल फिनिश सर्कुलर मोशन। उस दिन कराऊंगा मैं फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले आप ये बताइए आज की क्लास में जितना किया है, एनी डाउट इज देयर? हाँ जी स्टूडेंट्स एक बार बताइए इन क्वेश्चंस या जितनी थ्योरी पार्ट किया है, एनी डाउट इज देयर बैंकिंग ऑफ ट्रैक में? No, sir. चलिए फिर इसके आगे ना थोड़ा सा नेटवर्क का मेरे एंड पर भी इशू है। फिर इसके आगे हम लोग मिलते हैं थर्सडे वाली क्लास के अंदर, ठीक है? Thank you, sir.